Today in this video, I'll be talking about how to score 70 plus marks in CA Final SFM. So हम इस वीडियो को ना फाइव पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 to 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट पे टॉकिंग अबाउट कि हम क्लास किससे लिए थे. सेकेंड पार्ट में आई बी टॉकिंग अबाउट कि मटेरियल किस यूज किए थे, कौन सा टीचर का और इंस्टीट्यूट का यूज किए थे. थर्ड हम टॉकिंग अबाउट कि रिविजन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा. And fourth, I'll be talking about the mock test. And the fifth part, but not the least, last but not the least, is last day revision plan. So let's start one by one. First, I'm talking about the classes. I took the classes from Sanjay Saraf sir class, and I think the class is valuable. And I said everything covered in the classes. So but the notes was very voluminous, so I decided when I started my self study, I decided to cut out the notes and into a very short form where I will have the opportunity, or I will have the ability to revise when as required by me, and so I cut down the notes. So I prepared the self-made notes, which is a short and cut notes from the notes made by the Sanjay Saraf sir in the class. So thereafter I'll be talking about the material. So in the material part, I didn't study the institute math at all, because whatever the sum are there in the institute math is already covered in the Sanjay Saraf math, and in addition all the past paper, RTP, MTP, everything is covered in the Sanjay Saraf math itself. So I didn't need to refer the institute math. Then talking about the SFM theory, and for SFM theory is contribute around 20 marks, and the base part is we can predict that from which chapter the question can become, like from risk management, startup finance, and or two chapter is there. And what I did was, for those 4 chapter is a sure chapter that question can be came, I covered each and everything from the institute math for only those 4 chapter. And for other chapter, I did refer the Bhavik Chakshi sir questionnaires, that is compilation of all the MTP, RTP, past paper question, everything is compiled in the SFM theory part. You can also refer the Bhavik Chakshi sir questionnaires for SFM theory, and that is, I am telling you, that is more than sufficient. एंड देयर आफ्टर इज रिविजन. लाइक मेरा रिविजन स्ट्रैटेजी ये था कि हम रिटन प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं. हम बहुत लोग को देखते हैं, लाइक everyone is doing the sums on the calculator, but I am telling you it is not. Sometimes what happen, it may be ठीक है, कुछ के लिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर तुम मैक्सिमम मास पॉपुलेशन देखेंगे ना, ज्यादा लोग फेल इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते. एंड रिटन प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट योर प्रिपरेशन. लाइक व्हाट आई डिड इज, आई डिडंट डू द सम्स ऑन द कैलकुलेटर, रेदर आई टूक द पेन एंड पेपर एंड सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द आंसर. व्हाट आई सीन इज, बहुत लोग इसलिए भी एसएफएम में प्रॉब्लम होता है, लाइक वो पहले क्वेश्चन देखता है, उसके बाद में जो सॉल्यूशन होता है वो देख लेता है. लाइक हम एक क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन भी देख लिया. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमको पता है कि वो हाँ अच्छा हमको तो याद है, लेकिन नहीं भाई, तुमको याद नहीं है. ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम एग्जाम में देंगे. एंड एग्जाम भी वो लोग नहीं देते, इसलिए मॉक टेस्ट में ही नहीं देते, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होते. एंड प्रॉब्लम कब पता चलता है, एग्जाम हॉल में, कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व पूरा कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है. तो इसलिए इसको अवॉइड करने का 2 सजेशन है. लाइक रिटन प्रैक्टिस करो, पहले ही आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद रिटन प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ पे भूल हो रहा है, तुमको गलती हो रहा है, उसके बाद आंसर देखो. एंड देयर आफ्टर एंड और मोर सजेशन की गिव द मॉक टेस्ट. एंड कमिंग टू द मॉक टेस्ट पार्ट, कि मॉक टेस्ट तुमको देना चाहिए. लाइक आई डिड 4 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट पेड मॉक टेस्ट था, एंड 2 मॉक टेस्ट तुम्हारा इंस्टीट्यूट का एमटीपी था.
तो जब हम मॉक टेस्ट दिया था हमको ये रियलाइज हुआ कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आया था सीए टेस्ट सीरीज से। तो हमको वो 3 आवर्स में हमको ये पता चल जाएगा कि हाउ टू टैकल एनी क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन इज कम आउट ऑफ द बॉक्स। सो ये एक फायदा है। और एक फायदा है कि तुमको एक मतलब एग्जाम एनवायरनमेंट मिल जाता है कि जब एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हो तुमको लगता है कि ये रिपीटेटिव हो रहा है, लाइक यू हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जाम एंड यू जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट इन द एग्जाम। सो गिव द मॉक टेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लास्ट डे रिविजन प्लान। हम लास्ट डे रिविजन प्लान क्या किए थे, हम पहले से क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे थे कि ये क्वेश्चन हमको लास्ट डे में देखना है। So what I did was कि those question I have already marked in the past in my during my revision part, I only referred those question, but मेरा ये मार्किंग का भी ना एक स्ट्रेटेजी होता है। लाइक तुमको ये दिमाग में रखना चाहिए कि मार्किंग 2 पैरामीटर में होना चाहिए। एक पैरामीटर कि जो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो तुमको गलती हो रहा है, बहुत गलती हो रहा है, जिसको तुमको लास्ट डे में देखना ही है, नहीं तो भूल हो जाएगा एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन आएगा। तो एक पैरामीटर तो ये है। और भी एक पैरामीटर है लाइक क्वेश्चन तो इजी है लेकिन क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसको ना अवॉइड मत करो मार्किंग के, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम तो मतलब तुमको हो जाएगा अगर एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर लास्ट डे में तुम वो रिवाइज नहीं किए देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी किसी ना किसी जगह पे तो वो गलती हो जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन सिलेक्शन ऐसा करना है कि फर्स्ट पैरामीटर ये रहेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्दो फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एंड हमको गलती भी हो रहा है, एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, मेरे गलती नहीं हो रहा है लेकिन उसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लाइक पास्ट पेपर में बहुत आया था तो आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सिलेक्शन करके रखे थे, लास्ट डे में रिवाइज किए थे, जिस दिन एग्जाम था उस दिन एसएफएम का थ्योरी अच्छे से रिवाइज किए थे एंड गेव द बेस्ट शॉट एंड आई स्कोर्ड 73 मार्क्स CA फाइनल SFM। So thank you for watching and best of luck for your exam.